everyone and welcome once again to Zenith Academy Online. Today we are doing a very amazing poem When Great Trees Fall from ICSE Class 10 curriculum. And in this video we'll be doing the detailed line by line explanation and also the analysis of each and every line. So let's begin. Before starting, let me tell you, I'll be explaining this in Hindi as well so that you have a clear understanding of the poem, understanding of each and every line. I'll give you good vocabulary words. I'll give you the explanation in English as well so that you write very well and score very good in your exams. And I'll also give you the analysis. So watch the video till the end, make notes and score very high in your ICSE English examination. So let's begin. Before beginning, let me also tell you about these amazing books from Oswal Gurukul. Here you have complete course for ICSE English 1 and 2 as well. And I highly recommend this 10 years solved papers for ICSE class 10. In this you have all the last year's solved papers for English. So for scoring high in English, you can opt for these books. So let's begin without wasting any time. That's the first stanza of our poem. When great trees fall, rocks on distant hills shudder. Lions hunker down in tall grasses, and even elephants lumber after safety. So that's the first stanza. When great trees fall, ना जब बहुत बड़े जो trees है वो fall होते हैं, जब गिरते हैं. Rocks on distant hills. Distant hills मतलब दूर जो hills है उनके भी rocks shudder करते हैं. Shudder means they tremble. Tremble means जब हम कांपते हैं ना डर से, उसे ट्रेम्बल या शडर कहते हैं. लायंस हंकर डाउन मीन्स क्राउच लो, दे क्राउच लो ना, डर नीचे हो जाते हैं. जब भी बिजली वगैरह चमकती है तो वी क्राउच लो, वी हंकर डाउन. वेयर डू दे हंकर डाउन? इन टॉल ग्रासेस. एंड इवन एलिफेंट्स, और एलिफेंट्स भी, यहाँ इन्होंने वर्ड यूज किया है इवन. इवन मतलब एलिफेंट्स भी. और ये एक एम्फेसाइज कर रहा है, ये एक स्ट्रेस डाल रहा है कि यहाँ तक कि हाथी भी. लंबर आफ्टर सेफ्टी. लंबर मीन्स मूव करना, है ना, एकदम स्लोली मूव करना है ना, जैसे कि आप बहुत हैवी बॉडी वाले हो, है ना. जब भी कोई इंसान एक ऑकवर्ड वे में मूव करता है स्लोली स्लोली तो उसे कहते हैं लंबर. सो लेट्स understand. So that's the explanation. The poet uses vivid imagery to depict the significant impact of fall of great trees. एक बहुत significant impact बता रहा है great trees के fall होने का. This disturbance मतलब जब एक great tree fall हुआ था, ये disturbance create हुआ. This disturbance causes even distant rocks to tremble. जो बहुत दूर है distant hills पे वो भी tremble हुआ है. And mighty animals like lions, है ना, and elephants to seek safety. So whenever this stanza is given, you can write these lines. I have given you the word meanings as well. Now the analysis part. These lines symbolize how the loss of great figures or events can send ripples, na lehre, through the entire world, affecting even the strongest and most resilient beings. तो बच्चों यहाँ बताया तो जा रहा है कि ट्री फॉल हुआ है ना. सॉरी, बताया तो जा रहा है कि ये ट्री फॉल हुआ है, उससे दूर दराज के हिल के पत्थर भी शडर कर गए हैं, ट्रेम्बल कर गए हैं. लायंस हंकर डाउन कर गए हैं, क्राउच लो हो गए हैं लंबी लंबी ग्रासेस में. और यहाँ तक कि एलिफेंट्स भी सेफ्टी की खातिर दे हैव मूव्ड. तो एक्सप्लेनेशन पार्ट इज दिस, बट इसका एनालिसिस क्या है, ये कहाँ से कनेक्ट करना चाह रहा है पोएट कनेक्ट कर, इसको सिंबलाइज कर रहा है. ये बड़े से ट्री को किस चीज से सिंबलाइज कर रहा है कि जो बहुत ग्रेट फिगर्स होते हैं दुनिया में, है ना, ग्रेट पर्सनालिटीज होती है, कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसमें हमने ग्रेट फिगर्स को लूज किया है, तो उसका असर बता रहे हैं कि कैसे इस पूरी दुनिया को असर होता है. इवन जो स्ट्रॉन्गेस्ट लोग होते हैं या मोस्ट रेजिलियंट बींग्स होते हैं उन सब पे को फर्क पड़ता है. अंडरस्टूड? ना नेक्स्ट आंसर. व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल इन फॉरेस्ट्स, small things recoil into silence, their senses eroded beyond fear. ना, तो जब ग्रेट ट्रीज फॉल होते हैं फॉरेस्ट में, इन द फॉरेस्ट, स्मॉल जो छोटी छोटी चीजें होती हैं
दे रिकॉइल इनटू साइलेंस। रिकॉइल मतलब ड्रॉबैक, जैसे हम एक स्प्रिंग होती है वो रिकॉइल कैसे हो जाती है, वापस पीछे आ जाती है ना। तो जो छोटी छोटी चीज होती है वो अंदर अपने घुस जाती है, दे ड्रॉप देमसेल्व्स बैक। देयर सेंसेस इरोडेड बियॉन्ड फियर, जो उनके सेंसेस होते हैं, जो उनके सोचने समझने की क्षमता होती है ना, वो इरोड, दे गेट वॉर्न अवे, फट जाते हैं, थक जाते हैं, बियॉन्ड फियर, राइट। So explanation part is the falling of great trees in forest create a profound silence among smaller creatures. Their senses are dulled, dull हो जाते हैं ना, worn out हो जाते हैं, eroded जो word use किया है. Their senses are dulled and overwhelmed, going beyond fear, मतलब हद हो जाती है ना, fear की भी हद हो जाती है, fear से भी beyond चले गए, going beyond fear to a state of numbness, है ना, एकदम numbness आ जाती है. So that is the literal meaning of these lines. Now the analysis. This represents how the passing of significant individuals, अगर कोई significant individuals दुनिया से चले गए हैं या उनकी डेथ हो जाती है या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, how the passing of significant individuals can leave those who looked upon up to them, है ना, इसलिए स्मॉल क्रिएचर्स बोला है कि जब बड़े ऐसे सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल्स मर जाते हैं या दे पास अवे, हाउ इट लीव्स दोस छोटे क्रिएचर्स कौन, who looked up to them in a state of shock and silence, ना, वो देखते हैं कि यार ये क्या हो गया, इट इज स्टेट ऑफ शॉक एंड साइलेंस फॉर देम, दे आर नॉट एबल टू रिएक्ट, उन्हें समझ नहीं आता है कि अब क्या होगा, दे आर अनएबल टू रिएक्ट और कॉम्प्रीहेंड, उसका मतलब नहीं निकाल पाते कि अब आगे क्या होगा, एंड एंड कॉम्प्रीहेंड व्हाट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लॉस, कितना बड़ा लॉस हो गया है, उस चीज को कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पाते हैं वो लोग, समझ आया. So when great trees fall in forests, small things recoil into silence, their senses eroded beyond fear. जब ग्रेट ट्रीज फॉल होते हैं फॉरेस्ट में, एक प्रोफाउंड साइलेंस क्रिएट हो जाता है छोटे छोटे क्रिएचर्स में, और उनके सेंसेस डल हो जाते हैं, दे गेट ओवरवेल्म्ड, गोइंग बियॉन्ड फियर टू अ स्टेट ऑफ नम्बनेस. When great souls die, the air around us becomes light, rare, sterile. We breathe briefly. Sterile का क्या मतलब होता है, जो बैरन होती है, जिसमें कोई लाइफ नहीं होती है, जिससे कुछ उग नहीं सकता है, ठीक है. सो व्हेन ग्रेट सोल्स डाई, जब ग्रेट सोल्स मर जाते हैं, तो हमारे आसपास की जो हवा है, हवा से यहाँ एनवायरमेंट बताया गया है, द एयर अराउंड अस बिकम्स लाइट, रेयर, स्टेराइल. वी ब्रीथ ब्रीफली, छोटे छोटे ब्रेथ्स लेते हैं हम. सो द डेथ ऑफ ग्रेट सोल्स मेक्स द एटमॉस्फेयर फील एम्प्टी, है ना, खालीपन आ जाता है. दैट्स व्हाई वी से इट इज लाइट. एटमॉस्फेयर फील्स एम्प्टी एंड लाइफलेस, इट बिकम्स स्टेराइल. रेयर क्या होता है, जो बहुत कम मिलता है, तो दैट इज व्हाई एम्प्टी और लाइफलेस से उसको कनेक्ट किया गया है. पीपल आर लेफ्ट गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, क्योंकि वो ऐसे स्टेट ऑफ शॉक में होते हैं कि दे आर लेफ्ट ग्रास्पिंग फॉर ब्रेथ, दैट इज व्हाई दे आर ब्रीदिंग ब्रीफली, feeling the weight of the loss in the very air they breathe. So you can understand if someone near you, someone very close to you dies, how you feel, है ना. सांस नहीं आती है, हमें एक हावीपन लगता है ना, किस चीज का हावीपन, जो लॉस हुआ है उसका हावीपन, और हमारे आसपास की जो एनवायरमेंट है, जो हवा है, उसमें दैट फील्स एम्प्टी, उसमें हमें खालीपन लगता है और लाइफलेस लगती है वो, कि जैसे जिंदगी रुक गई हो. So analysis is, the poet emphasizes the profound impact of losing great individuals, likening it to an alteration in the very essence of life and environment around us. तो यहाँ पोएट ने लिखा तो ट्रीज के बारे में है ना, लेकिन वो कनेक्ट और उनको कर रहा है लूजिंग ग्रेट इंडिविजुअल्स से. लेट्स सी द नेक्स्ट स्टैंजा. Our eyes briefly see with hurtful clarity. Our memory, suddenly sharpened, examines, gnaws on kind words unsaid, promised walks never taken. ठीक है, तो हमारी आंखें भी थोड़ा ब्रीफली देख सकती है, एक हर्टफुल क्लैरिटी, है ना, हर्ट हुआ है लेकिन क्लियर हम देख सकते हैं, हम उनकी पिछली बातें याद करते हैं, हमारी मेमोरी अचानक से शार्पन हो जाती है, हम एग्जामिन करते हैं, एंड वी ग्नाउज ऑन काइंड वर्ड्स, मतलब बाइट्स,
चबाना, है ना, हमें याद आते हैं जो काइंड वर्ड्स उन्होंने कहे थे, ठीक है, या नहीं कहे थे। ग्नाउज ऑन काइंड वर्ड्स अनसेड, अगर हम उनसे कुछ अच्छी बातें ना कह पाए, है ना, जैसे जाते जाते सोचो कि कोई एक बहुत क्लोज इंसान अचानक से उनकी डेथ हो गई, तो कुछ बातें ऐसी अनकही होती है जो हम नहीं कह सकते, तो हम से जब उनकी डेथ हो जाती है तो वी बाइट एट दोज काइंड वर्ड्स, तो वी से ग्नॉज ऑन काइंड वर्ड्स which were unsaid, maybe we didn't say or they didn't say. Promised walks never taken, maybe we had promised certain things to them which we didn't do, maybe they have promised certain things which they couldn't do, right? So I'll read the stanza again. Our eyes briefly see with a hurtful clarity, our memory suddenly sharpened examines, gnaws on kind words unsaid, promised walks never taken. So in the wake of such loss, people experience a moment of painful clarity where they regret the things left undone and unsaid. Memories become sharply focused on missed opportunities and unfulfilled promises. So you can write these words and score good. This is a very amazingly written explanation of this. And now, if we want to analyze this stanza, this highlights the theme of regret and the importance of expressing love and fulfilling those promises while there is still time. So that's the analysis. ये क्या highlight कर रहा है? ये stanza क्या highlight कर रहा है? It is highlighting the theme of regret and the importance of expressing love and fulfilling those promises जब तक की time है ना? Let's go ahead. Great souls die, and our reality, bound to them, takes leave of us. Our souls, dependent upon their nurture, shrink, wisen. अब हम यहाँ देखते हैं, ग्रेट सोल्स डाई एंड आर रियलिटी बाउंड टू देम, हमारी जो रियलिटी उनके साथ जो बाउंडेड है वो हमसे दूर चली जाती है, टेक्स लीव ऑफ अस. आर सोल्स, हमारे जो सोल है जो उन पे डिपेंडेंट थे, जो उनके नर्चर पे डिपेंडेंट थे, है ना, दे नाउ श्रिंक एंड वाइजन. वाइजन मतलब रिंकल हो जाता है, श्रिवल्ड हो जाता है. सो हियर व्हाट्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस? व्हेन ग्रेट सोल्स पास अवे, आर सेंस ऑफ रियलिटी विच वॉज टाइड टू देम, है ना, हमारी जो सच्चाई उनके साथ बंधी हुई थी, मे बी हमारे जो भी रिलेटिव थे वो, है ना, वो सच्चाई भी खत्म हो जाती है ना. आवर सेंस ऑफ रियलिटी ऑल्सो फिनिशेस. द नर्चरिंग इन्फ्लुएंस, जो उन्होंने हमें, उनका नर्चरिंग इन्फ्लुएंस उन्होंने हमें प्रोवाइड किया था, द नर्चरिंग इन्फ्लुएंस दे प्रोवाइडेड लीव्स आवर सोल, हमारे सोल को छोड़ के चला जाता है. और हमारा सोल कैसा हो जाता है जब कोई चीज़ चली जाती है बाहर, जैसे कि हम देखें कि अंगूर में से जब पानी बाहर निकल जाता है तो वो कैसे श्रिंक हो जाता है, तो उसी तरीके से हमारा सोल भी श्रिंक हो जाता है जब वो नर्चर देने वाला ही इंसान नहीं रहा है, उनका जो नर्चरिंग इन्फ्लुएंस नहीं रहा है, राइट? So this conveys the idea that guidance and support of great individuals are crucial to our well-being. हमारी well-being के लिए क्या ज़रूरी है? जो हमारे सोल को उन्होंने नर्चर किया था, उनके इन्फ्लुएंस ने नर्चर किया था. बेसिकली नर्चरिंग इज नॉट, दे डिड नॉट फीड अस. हमारे सोल को क्या फीड किया गया था? उनका इन्फ्लुएंस, उनका नर्चरिंग इन्फ्लुएंस, right? So this conveys the idea that guidance and support of great individuals are very crucial, very important for our well-being, and their absence, जब उनकी absence हो जाती है, it leaves us feeling lesser and lost. Our minds formed and informed by their radiance fall away. We are not so much maddened as reduced to an unutterable ignorance of dark, cold caves. यहाँ रेडियंस का मतलब है, यहाँ जब हम यहाँ बात करें रेडियंस एंड इन्फॉर्म बाय द रेडियंस, रेडियंस मीन्स लाइट और हीट एमिटेड और रिफ्लेक्टेड, जो उनकी रोशनी थी, है ना, कोई एक ग्रेट इंडिविजुअल्स की जो ऑरा होता है ना, जो उनकी चमक होती है, जो हमें दिखती नहीं है बट दैट्स रेडियंस, जो वो एमिट करते हैं, जो वाइब्रेशंस, जो फ्रीक्वेंसी वो एमिट करते हैं, ठीक है. एंड अनअटरेबल मतलब जिसे हम कह नहीं सकते, वी कैन नॉट अटर, वी कैन नॉट से, है ना, टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स, वर्ड्स से नहीं निकाल सकते हैं. तो इसका मीनिंग क्या है? द विजडम एंड नॉलेज इम्पार्टेड बाय ग्रेट सोल्स इल्यूमिनेट आवर माइंड्स, हमारे माइंड्स को रोशनी देते हैं.
In their absence, we are not driven mad, but are reduced to a state of ignorance and darkness. तो हम we are not so much maddened, है ना, हम पागल नहीं हो जाते हैं, लेकिन हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है, मतलब उनके एब्सेंस से मैड नहीं होते, बट हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है इट इज रिड्यूस्ड टू अ स्टेट ऑफ इग्नोरेंस एंड डार्कनेस, क्योंकि अब उनकी रेडियंस नहीं रही है, उनकी चमक नहीं रही है जो कि हमारे माइंड को इल्यूमिनेट करे, हमारे माइंड को रोशन करे। समझ आया? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। आर माइंड्स फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड बाय देयर रेडियंस, हमारे जो माइंड को फॉर्म हुआ है और जो इन्फॉर्म किया गया है उनकी रेडियंस से, मतलब उन्होंने हमें नॉलेज इम्पार्ट की है, राइट, इट फॉल्स अवे, ये रुक जाती है। वी आर नॉट सो मच मैडेंड एज रिड्यूस टू अनअटरेबल इग्नोरेंस ऑफ डार्क कोल्ड केव्स। तो इग्नोरेंस को इन्होंने रिलेट किया है या किससे कंपेयर किया है? डार्क कोल्ड केव्स के जैसा। समझ आया? Now let's see the analysis part. The poet illustrates the profound intellectual and emotional loss experienced when influential figures pass away, leaving a void, एक खालीपन जो रह जाता है, that plunges us into a metaphorical darkness. तो एक ये मेटाफॉर दिया है डार्कनेस का यहाँ पे, ठीक है, कि जो इंटेलेक्चुअल और इमोशनल लॉस हुआ है, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं जब इन्फ्लुएंशियल फिगर पास अवे हो जाते हैं, it leaves a void inside us and we plunge into a metaphorical darkness. ऐसा लगता है कि हम एक केव, अंधेरी गुफा में चले गए हैं. That is ignorance of dark. And when great souls die, after a period peace blooms. है ना, जब great soul die हो जाते हैं, after a period, कुछ टाइम के बाद peace फिर से आ जाती है. After a period peace blooms, slowly and always irregularly. Spaces fill with a kind of soothing electric vibration. है ना, irregular का मतलब है not at regular intervals. So after the initial period of mourning, जब एक थोड़ा समय बीत जाता है, किसी की डेथ हो गई है और इनिशियल पीरियड जब चले गए हैं, है ना, 3-4 दिन हो गए हैं, थोड़ा और टाइम पास हो गया है, तो जब मॉर्निंग का पीरियड खत्म हो गया है, आपको ऐसा फील नहीं होता है कि इवेंचुअली आपके अंदर सब्र आ जाता है ना, सब्र आ जाता है. सो पीस इवेंचुअली बिगिंस टू रिटर्न, फिर से पीस आ जाती है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी चलने लगती है. दो इट इज अ स्लो एंड अनइवन प्रोसेस, है ना, धीरे धीरे होता है ये, और कभी उनकी बहुत याद आती है ना, कभी कभी बहुत ज्यादा लगता है कि वी आर मिसिंग दैट, कभी हमारी नॉर्मल लाइफ में हम बिजी हो जाते हैं, इसलिए अनइवन प्रोसेस है, इसलिए बोला है इरेगुलर. The emptiness left behind starts to fill with a new comforting presence. ये जो emptiness हो गई है उनके जाने से, किसी और की comforting presence से, किसी और के आने से वो comfort हमें मिलने लगता है. I'll repeat. And when great souls die, after a period peace blooms. फिर से bloom होना मतलब खिलना, है ना, peace फिर से आ जाती है, slowly and always, irregularly, है ना, कभी slowly तो है ही, बट हमेशा irregular होती है. Spaces fill मतलब ये बोल रहा है कि फिर से किसी और, कोई और ये जगह ले लेता है, with a kind of soothing electric vibration. ऐसा लगता है कि एक soothing electric vibration आ रहा है ना, किसी का कंफर्टिंग प्रेजेंस आना इज सूदिंग इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन. दिस रिफ्लेक्ट्स द हीलिंग प्रोसेस. अब ये स्टेंजा का एनालिसिस जब हम करेंगे तो अब ये हीलिंग प्रोसेस पे आ गया है. सो दिस रिफ्लेक्ट्स द हीलिंग प्रोसेस फॉलोइंग अ सिग्निफिकेंट लॉस. आफ्टर अ सिग्निफिकेंट लॉस जो एक हीलिंग प्रोसेस होता है वो बता रहा है. वेयर ग्रेजुअली a sense of peace and new normalcy begins to take hold. नई जो पहले जैसा नॉर्मल लाइफ चालू हो जाती है. So a sense of peace and new normalcy begins to take hold. Our senses restored, never to be the same, whisper to us, they existed. We can be and be better, for they existed. तो जब हम रिकवर करते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है? एज वी रिकवर आवर सेंसेस, दो चेंज, माना कि किसी के जाने से हम के थोड़े टाइम बाद वापस सेम वैसे नहीं हो जाते, है ना, हमारे सेंसेस रिकवर होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज आता है,
ना, our senses restored, never to be the same, but they restore. पहले जैसा exactly नहीं हो जाते, but it restores, right? It whispers to us, ये हमें क्या कहता है कि वो exist करते थे, है ना? Remind us, whisper करना मतलब हमें कहना, remind करना, remind us of the existence of those great souls. Then they are saying they existed, we can be and be better for they existed. हम हो सकते हैं, है ना, और बेहतर क्योंकि उन्होंने एग्जिस्ट किया था, क्योंकि उन्होंने हमारी लाइफ पे इन्फ्लुएंस किया था. देयर लेगेसी इंस्पायर अस टू स्ट्राइव टू बी बेटर because they once were part of our lives. I hope you have understood this, kids. So the analysis, the poet concludes with a message of hope and inspiration, urging us to honor the memory of great individuals by continuing to grow and improve. How? By getting influenced by their legacy. तो पोएट एक मैसेज दे रहा है होप और इंस्पिरेशन का, है ना. हमें कह रहा है कि उनकी मेमोरी, वो जो ग्रेट पीपल थे, ग्रेट इंडिविजुअल थे, उनकी मेमोरी को ऑनर करो आप, है ना. कैसे आप ऑनर कर पाओगे? टू कंटिन्यू टू ग्रो, आप ग्रो करो, है ना, इम्प्रूव करते जाओ, ग्रो करते जाओ, क्योंकि आप किससे इन्फ्लुएंस्ड हो? उनकी लेगेसी से, जो वो पीछे छोड़ के गए हैं, उनका जो एग्जिस्टेंस था, उनकी जो सीख थी, उन्होंने जो हमें सिखाया था, right? So we'll just go through the summary and we'll just reflect upon the poem. So the poem When Great Trees Fall by Maya Angelou explores the profound impact of losing influential figures. Through vivid imagery and emotional depth, the poem conveys the themes of loss, regret, and then eventual healing. It encourages the readers to cherish and honor the memories of those who have made a significant impact on their lives. So I hope you have understood everything very well. Once again, I'll give you the link of this particular 10-year solved papers book in the description below. You can go and have a look, and you can get these amazing ICSE question banks for preparing for your different subjects like physics, chemistry, mathematics. They have this most likely ICSE question banks where they have given you category wise and chapter wise questions of all the types, different chapter wise, right? And also this complete course for ICSE English 1 and 2 is very amazing. So if you have liked the poem, if you have liked the explanation that I have given you, then please subscribe to my channel. Write in the comment box what you want me to do next, and keep the learning always on Zenith Academy Online, and all the best for your board exams. Thank you.